तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज़ का हकीकी मालिक है, जो जैसी लातदाद निबातात को पैदा फरमाने वाला, इनको रंग व बू बख्शने वाला और इनमें अजीबो गरीब अफ़ाल व ख़वास रखने वाला है। नाज़रीन किराम, आज मैं ख़ास एक चीज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, ख़ास एक सन्यासी नाराज़ जो कि अमराज़ जिल्दिया के लिए मानंद अक्सीर है। नाज़रीन किराम, ख़ास आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, ये एक बूटी है जिसमें एक गंधक बड़ी लाजवाब तैयार होती है। गंधक को इस बूटी के पानी में मदबर किया जाता है और नाज़रीन किराम वो गंधक जो है सिर्फ महज 4 या 5 खुराकें ही तमाम अमराज़ जिल्दिया को दूर करने में, दफ़ा करने में अपने अंदर अक्सीरी हुक्म रखती है। मैं भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं नाज़रीन किराम, मैं इसके पत्थर उतारता हूँ फिर आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। क्या जी कल्पी दबो मनु हैं फड़ा दे मनु नाज़रीन किराम, ये आप देख रहे हैं, ये डंडा थोहर है। खास अमल में आपकी खिदमत में अर्ज़ करूंगा किस तरह गंधक को मुदब्बर करना है इस बूटी से। ये रब्बुल इज़्ज़त के ज़मीन पर बखेरे हुए खजाने हैं। चूंकि ये एक खारदार निबातात की किस्म है, तो किसी औजार के साथ, किसी चीज के साथ इन पत्तों को नीचे गिरा ले आप। अपना ना बीजना भी जैसे छाप में पा बीच में बड़े इलाके के पास 2 किलो 6.5 किलो ले जाए। लेकिन ये आप देख रहे हैं कि डंडा थोर के हम पत्ते जो है, डंडा थोर के पत्ते उतार रहे हैं। तो ये इन पत्तों से, इस बूटी के जो निबातात की किस्म है डंडा थोर, जो आप पीछे मेरे देख रहे हैं, इसके पत्तों में गंधक जो है एक लाजवाब तैयार होती है, गंधक मदब्बर, तो जो कि अमराज जिल्दिया को मानंद अक्सीर है। देख दीजिए पे मैं तो कह रहा था बगैर कम नहीं चलना। तो आवाज पत्थर चट भी आ जाए। देखिए
پتلے پسے ہم تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم اس کے پتیاں جو ہیں یہ اس درخت کی اتار رہے ہیں. انہوں تلاؤ ہاں چھوٹی میں تھلے کھچے ادھر ہی چھوڑ دے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی محنت کے ساتھ ڈنڈے جڑے نا ڈنڈے چھوٹے رہتے جڑے جب تو قبرستان بچھڑے اپنے کو بھی نسل ہوئے نا سال ڈیڑھ سے بڑھا جاتا. بڑے جانے کو بڑے جانے کو کدھروں ہے بڑے ایک ڈنڈا بھی رہنا بیچ رہے یہ کل بھی والے نے ہاتھ رکھا پڑا پنے پنے چکا پا سے جذبہ دے میں تو تھوڑی نا تو ناظرین میں نے آپ کے سامنے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈنڈا تھوہر کے پتیوں کو میں حاصل کر رہا ہوں آپ کے سامنے. آپ نے دیکھا ہے کہ ایک خاص اوزار کے ساتھ میں اس کو اتارا چونکہ یہ ایک خاردار درخت کی خاردار نباتات کی قسم ہے. اب میں تھوڑی سی اس کی بات کروں پھر انشاءاللہ تعالی میں گندہ کا طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. تھوہر ناظرین کرام جس کو زقوم بھی کہتے ہیں دوسرے درجے میں گرم و خشک ہے. یہ ایک شیر رکھنے والی نباتات کی قسم ہے. تھوہر کی اقسام جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں، جس طرح چھتر تھوہر جس کو ناگ پھینی تھوہر کہتے ہیں، یہ ڈنڈا تھوہر، اور ڈنڈا تھوہر میں کئی اس کی پرجاتیاں پائی جاتی ہیں، کئی اقسام پائی جاتی ہیں. تدہارا تھوہر، چدہارا تھوہر، پنجدھارا تھوہر، یہ پنجدھارا ہے. اور اس طرح اس کی بہت ساری اقسام پائی جاتی ہیں. اور فال و خواص میں ناظرین یہ تمام کی تمام ان کے فال و خواص ایک جیسے ہیں. آپ یہ پتیاں حاصل کر لیں. آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں، ہم اس کو جمع کر رہے ہیں آپ کے سامنے، ابھی میں نے اتار کے دکھائی ہیں. آپ اس کی پتیاں حاصل، چونکہ یہ ایک شیر دار نباتات کی قسم ہے، دودھ دینے والی ایک نباتات کی قسم ہے. اس کی پتیاں حاصل کر لیں اور ہاون دستے میں تازہ پتیاں کوٹ کر ان کا پانی کپڑے میں سے جب آپ نچوڑیں گے تو اس کا پانی جو ہے وہ نکل آئے گا. اس کا ناظرین تازہ پانی آپ نے 2 کلو جمع کرنا ہے. پتیاں اتنی زیادہ ہوں کہ 2 کلو پانی جمع ہو سکے. ناظرین اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ 100 گرام گندک آپ نے لینی ہے. تو ناظرین اس 100 گرام گندک کو آپ نے کولوں کی آگ پر، آہنی کڑائی میں گندک ڈال کر کولوں کی آگ پر رکھنا ہے. دھیمی آگ ہونی چاہیے، گندک میں آگ نہیں لگنی چاہیے. یہ خاص ایک عمل میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں جو کہ فقیرانہ ایک سنیاسیانہ راز ہے. امراض جلدیہ کو مانند اکثیر ہے اور اس قدر اس کے فائدے ہیں کہ تمام دانت چنبل، پھنسی پھوڑی اور تمام قسم کی امراض جلدیہ کو اس طرح
दूर करता है जिस तरह के कभी थे ही नहीं। तमाम किस्म के अमराज जल्दिया यानी दाग चंबल, फोड़े फिंसियाँ और ये सबूरात, तमाम किस्म की जल्दी अमराज दुम दबाकर भाग जाते हैं। नाज़रीन हम उस गंधक को आग पर गर्म करें और इतनी आग धीमी होनी चाहिए कि गंधक में आग ना लगने पाए। कोलों की आग हो तो वो जब अच्छी तरह से गंधक पिघल जाए तो डंडा तोड़ के पानी में अंडेल दें, फिर बाहर निकाल लें और फिर बाद दस्तूर गर्म करें दोबारा से, फिर अंडेल दें। इसी तरह आपने 21 दफ़ा करना है। 21 दफ़ा अमल करने के बाद नाज़रीन गंधक को किसी कागज़ या किसी चीज़ पर फैला दें ताकि सूख जाए और पानी जो है तमाम डंडा तोड़ का वो बहा दें, ज़ाया कर दें और उस गंधक को बारीक पीस कर शीशी में संभाल रखें। नाज़रीन हम एक खुराक रत्ती सुबह, एक रत्ती शाम को ताज़े पानी के साथ। गंदे से गंदे फोड़े फिंसियाँ चंद दिनों में दूर हो जाते हैं। तमाम दाग चंबल को मनंद अक्सीर है, ख़ास तौर पर नासूर बगंदर का आखिरी और हुक्मी इलाज है। यह ख़ास इन जड़ी बूटियों के तिलिस्म में आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ ताकि जो है वो इल्मुल अकाकीर जो है इसकी इस्तिलाह में जो इलाज मुआवजा है मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ, आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। तो नाज़रीन ये ख़ास एक अमल सन्यासियन अमल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है जो कि अमराज जल्दिया के लिए लाहौरी फोड़ा है, नासूर है, बगंदर है, उसका ये हुक्मी इलाज है। बहुत सारे दोस्त इसकी दुआ तलाश करते रहते हैं। अगले ही दिनों में एक मेरे दोस्त हकीम साहब थे, उनको बगंदर हो गया और इसी गंधक से सिर्फ उनको महज 14 दिन में मुकम्मल तौर पर शफा हो गई। ये ख़ास मुजरबुल मुजरब है और ख़ास सन्यासी नाराज है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पजीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।